Hello everyone, I'm Ruchi Rathod and I welcome all of you in my YouTube channel. In this video, we are going to discuss with the derived gates. Okay, here also we will talk about the electronics topic, and here electronics topic that we have taken is derived gate. In the previous video, we have discussed about the universal gate. Now we will discuss with the derived gate. Okay, we know that derived gate is classified into two types, XOR gate and the exclusive NOR gate. So here we will discuss these two gates. Okay, so let's discuss first with the XOR gate, then we will jump to the exclusive NOR gate. So here we are discussing with the XOR gate, that is EX dash OR. Okay, this we can read as exclusive OR gate, or this we can represent by capital XOR, that is XOR gate. Like this you can represent the XOR gate. Okay, and as we have discussed in the NAND, NOR and an OR gate, similarly here XOR gate can also have n number of inputs. That means it can have two or more than two inputs but only one output. Okay, in the input terminal it can have n number of input, and in the output it will have one terminal for the output. Okay, and its definition is like, see, then we will see this in the truth table so that it will becomes very easy to you. If all the inputs are high or all the inputs are low, then output of the XOR gate becomes low. Means if you have inputs like 1 1 or 0 0, if you are talking about two inputs XOR gate, then output of this will becomes 0. But if we have different combinations of inputs, such as if A is 0, B is 1, or A is 1, B is 0, if we have such kind of inputs, then the output of this becomes high. Okay, this is the truth table for XOR gate. Okay, now the Boolean expression of XOR gate is this. See, this is the Boolean expression for XOR gate. This is the Boolean expression for two input XOR gate, that is A XOR B. This is a symbol for XOR gate which represents the XOR gate. So we will read this as A XOR B, and this we can write in this form. Okay, clear? That is A dot B the complement plus A complement dot B. Okay, in this format we can write this. Okay, now I'll show you one simple logic to remember this. Okay, you have to write this, but I'll show you one simple logic to remember the Boolean expression of XOR gate. As you all know that the derivative of U into V. Okay, derivative of U into V, the formula is very simple. U into V का अगर हम derivative करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? See, U derivative of V plus, now V remains as it is, derivative of U. So what we have to do is, instead of U we consider A and B. Now we will write A derivative of B plus B derivative of A. Okay, now what you have to do, write A as it is, B as it is, and instead of D just write the complement sign. Okay, then plus as it is, B write as it is, and here derivative of A, that means write complement of A. Here I have explained you with the simple logic. Means U into V का मैंने एक formula सिर्फ लिया है, एक logic लिया, so that आपको ये इसका जो simplified one है XOR gate का, वो आपके mind में रहे. ठीक है, so this you have to remember. तो ऐसे अगर आप U into V का करोगे ना, तो आपको ये एक्सप्रेशन में मिस्टेक्स नहीं करोगे XOR gate के. I hope this logic will help you to remember the XOR gate Boolean expression in the simplified one. Okay, so this was the Boolean expression for XOR gate. Similarly, we can represent for the n number of input for the XOR gate. Now we will see the logical symbol of the XOR. This is the logical symbol of the XOR gate. This diagram is showing the two input. Therefore, in the input terminal we have two inputs, two connections are there, one for A and other input is B. So the output we will get A XOR B. Okay, now we will proceed with the truth table. So in truth table, this truth table we can write directly. See here in this, directly we can write the truth table in the three columns. There is two input and the output of XOR gate is this. ठीक है, जो आउटपुट है वहां पे लिख दो, तो थ्री कॉलम्स में अपना एंड हो जाता है. ए बी है, टू इनपुट है तो फोर कॉम्बिनेशन, 2:2 विच इज इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशन. ऑलरेडी इसको मैंने इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इन माई प्रीवियस वीडियोस.
ओके, सो 4 कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ले लिया हम लोग ने 0 एंड 1s का. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, सो सी XOR गेट का डेफिनेशन क्या है. इफ बोथ द इनपुट्स या ऑल द इनपुट्स आर लो और ऑल द इनपुट्स आर हाई, वी आर गेटिंग द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज 0, that is low. But if we have combinations like if A is 0, B is 1 or A is 1, B is 0, that means if we have different combinations of input, then we will get output as 1, that is high. Okay, this we have done with the definition in the 3 column, the XOR gate का truth table. So if you are writing this truth table, that's also okay. But if you don't remember the definition, if you don't know how to write the truth table of XOR gate, but you remember the boolean expression, तो आप क्या कर सकते हो, 3 कॉलम के जगह आप ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, जो हमारा एक्सप्रेशन था यहाँ पे A डॉट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट B, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू A XOR B, जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन था इन द सिंप्लीफाइड वन. यू कैन यूज दिस सिंप्लीफाइड वन टू फाइंड आउट द XOR गेट का एक्सप्रेशन मीन्स ट्रूथ टेबल. तो आप ऐसे लॉन्ग में भी लिख सकते हो या चाहिए अगर आपको डेफिनेशन याद है तो 3 कॉलम्स में इनफ कर. अब इसको कैसे लिखोगे, देखो ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है XOR गेट का इन द सिंप्लीफाइड वन, कितने इनपुट्स है, 2 इनपुट है तो 2 कॉलम विल कम फॉर A एंड B. नाउ सी we have A complement and B complement also, so 2 more common we will take for A complement and B complement. Now we'll take this first term, see I have written, then we will take this second term, see here I have written, then we'll take this together, that is first term and second term का add करेंगे. ठीक है, this is our final one, that is A XOR B का we will get here. Clear? So like this we can write here. So I have written this. Okay, just do step by step, one by one. If you do ना, सिर्फ what will happen, यहाँ पे number of column will increase but it will make easy to you. अगर आपको नहीं आता है ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपके लिए इजी बना देगा. अब देखो A B है, 2 इनपुट है तो देखो 4 कॉम्बिनेशन 0 1 के A B में हमने ले लिया. A कॉम्प्लीमेंट मतलब जो A में मिला है उसका अपोजिट. हियर 0 है तो यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट में 1. हियर वी हैव 0, दैट मीन्स A कॉम्प्लीमेंट विल गेट 1. तो एग्जिट अपोजिट यू विल गेट A कॉम्प्लीमेंट. सेम B कॉम्प्लीमेंट वी विल गेट फ्रॉम हियर, जो B में दिया उसका अपोजिट. 0 है तो 1, 1 है तो 0. नाउ वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट वन, दैट इज C हियर. नाउ हियर वी हैव टू फाइंड A B का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, A B का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स नाउ वी आर इंटरेस्टेड विद दिस A कॉलम एंड दिस B बार मतलब ये बार. ठीक है, अब बीच में डॉट का फंक्शन है मतलब एंड का फंक्शन यूज करेंगे, ये दोनों में यूज करेंगे. ठीक है, एंड का फंक्शन क्या बोलता है, अगर ऑल द इनपुट्स 1 है, यहाँ पे 2 इनपुट ही है तो इफ बोथ द इनपुट्स आर 1 दैट मीन्स आउटपुट विल बी 1 एंड फॉर रिमेनिंग आउटपुट बिकम्स लो. तो देखो यहाँ पे सिर्फ थर्ड अगर आप देखोगे थर्ड वाला, तो थर्ड में दोनों इनपुट क्या है, सेम है. ठीक है, सेम मतलब दोनों इनपुट हाई है यहाँ पे. ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा हाई आएगा. एंड रिमेनिंग का आपका देखोगे तो इसमें 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 1 0, मतलब सिर्फ थर्ड वाला जो केस था यहाँ पे हमारे पास दोनों इनपुट हाई था. तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली थर्ड केस बिकम्स हाई एंड ऑल बिकम्स लो. ठीक है, दिस यू कैन ऑब्जर्व हियर. ओके, नाउ वी विल मूव थ्रू द नेक्स्ट, दैट इज नाउ हियर A बार डॉट B, मतलब नाउ वी आर इंटरेस्टेड with these 2 column A bar dot B. So here see, only in this second case we have high inputs, both are high inputs, so here we will get high and for all we will get low because for all we have different combinations. और यहाँ पे आपको दोनों 0 दिखेगा. ठीक है, बट हाई वाला जो केस था सिर्फ सेकेंड केस था, तो यहाँ पे 1 मिल गया, बाकी हमको क्या मिला, यहाँ पे 0 मिल गया. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, दैट इज लास्ट वाला. अब यहाँ पे A B बार प्लस A बार B है, मतलब ये दोनों को अब लेंगे हम. दोनों के बीच में क्या है, और है, तो ये दोनों का आपको क्या करना है, और का फंक्शन क्या है, 0 0 जो रहता है, मतलब इफ बोथ द इनपुट्स आर लो या ऑल द इनपुट्स आर लो द आउटपुट बिकम्स लो. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट केस है, लास्ट केस है, ये दोनों केस में क्या हो रहा है, ऑल द इनपुट्स आर लो, मतलब दोनों इनपुट क्या है, लो है, तो ये हो जाएगा लो. ठीक है, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, हाई. ठीक है, तो यही आपको मिला है ना XOR का. तो यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन यूज सिंप्लीफाइड वन, मतलब आप एक स्टेप वाइज जा सकते हो. देखो हमने ये एक्सप्रेशन यूज किया था, पहले 2 इनपुट लिया A B, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट किया है, फिर हमने फर्स्ट टर्म को लिया है, फिर सेकेंड टर्म को लिया है, फिर दोनों का और किया है. ठीक है, यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट, आइदर यू कैन राइट in this format, that is in the simplified one
और यू कैन राइट द डायरेक्ट वन। ओके, ये सिंप्लीफाइड वन में लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट मतलब 3 कॉलम में आप इसको लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू। जैसे आपको सिंपल लगे एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल लिखने में, यू कैन राइट। ठीक है, सिंप्लीफाइड वन बेसिकली सिंपल क्यों हो जाता है, तो उसमें आप 1 बाय 1 स्टेप में जाते हो, तो इसलिए वो आपको सिंपल हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट समटाइम्स क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। इसका जो एक्सॉर गेट का सिंबल है, इसके वजह से कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वी हैव डिस्कस विद द एक्सॉर गेट, नाउ वी विल सी द एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब हम जो बात करेंगे वो होगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट के लिए फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज इट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर गेट। अगर आपको एक्सॉर गेट आता है, ठीक है, तो उसका एग्जैक्ट अपोजिट आउटपुट आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब एक्सॉर में अगर आपको 1 मिला है तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। अगर एक्सॉर में 0 मिला है सो हियर यू विल गेट 1, मीन्स एग्जैक्ट अपोजिट यू विल गेट इन द एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या हम EX नॉर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज एक्सक्लूसिव नॉर इट इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सॉर गेट। Okay, and like XOR gate, exclusive NOR gate can have also 2 or more than 2 inputs and single output. मतलब it can have n number of input and single output. Okay, so as I told you that it is a complement of XOR gate. That means if when all the inputs are high or if all the inputs are low, here output you will get high. एंड फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट आउटपुट विल बी लो। यही एक्सॉर में क्या होता है, जब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है तो हमको हाई मिलते हैं एंड जब सेम कॉम्बिनेशंस है तो हमको लो मिलते हैं, बट यहाँ पे अपोजिट मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ये जो एक्सक्लूसिव नॉर है ये एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो आपके पास एक्सक्लूसिव और का जो बुलियन एक्सप्रेशन है, मतलब A एक्सॉर B, इसके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख दोगे। मतलब ये हो जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, और इसी को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है, तो मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर द एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा दोगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। अब अगर हम लॉजिकल सिंबल देखते हैं तो यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दी दैट इज लॉजिकल सिंबल फॉर दी एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सिंपली क्या किया है, देखो ये यहाँ तक हम लोगों ने सेम जैसे एक्सॉर में ड्रॉ किया था वैसा किया है, बस यहाँ पे एक बबल रिप्रेजेंट किया है। जो ये जो बबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्जन। मतलब जो भी आपको एक्सॉर गेट, मतलब आपको जो भी यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ये जो बबल है दैट इज जो इन्वर्जन रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब वो इसको इन्वर्ट कर देगा। अगर आपको यहाँ पे 1 मिला है दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस साइन इट विल बिकम 0, मतलब ये उसको इन्वर्ट करेगा। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो दैट इज लॉजिकल सिंबल, दिस इज द लॉजिकल सिंबल फॉर द 2 इनपुट exclusive NOR. Now we will see the truth table for the exclusive NOR gate. Okay, see here. So truth table, as we know that the exclusive NOR gate having the Boolean expression like this: A XOR B the whole complement. ठीक है, दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। ओके, एंड इनपुट एज वी हैव 2 इनपुट्स A and B, so we will make here 2 column, one for A, other for B. 2 input, that means 4 combinations. So here I have written 4 combinations of 0 and 1s in A and B column. Okay, now here the output we will write as we know that exclusive NOR gate का आउटपुट क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, इफ ऑल द इनपुट्स आर लो और ऑल द इनपुट्स आर हाई द आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव NOR gate becomes high. And if we have different combinations like 0 1 or 1 0, that is if A is 0 B is 1, or if we have A is 1 B is 0, we will get output low. ठीक है, यही आपने किस में देखा था, एक्सॉर गेट में, जहाँ पे एक्सॉर गेट में हमको आउटपुट कुछ ऐसा मिला था 0 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे हमको 0 था एक्सक्लूसिव नॉर में 1 मिला है, जहाँ पे 1 था वहां पे हमको एक्सक्लूसिव नॉर में 0 मिला है। ठीक है, so therefore we can conclude that exclusive NOR it is a complement of exclusive OR gate. So I hope you have understood clearly about the exclusive OR and the exclusive NOR gate. But still if you have any doubts regarding this, you can ask me in the comment section box.
Okay, but if you have understood this, please like my video, share this, comment, give your feedback and subscribe my channel. Thank you for watching.